أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 سٹارٹ کرنی ہے، بلکہ اس کے کچھ پڑھ چکے ہیں، رہ گیا جو بیان کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیان کر کے تو ہم آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے. جس کے لیے جو معاملہ ہے دنیا کا وہ چاہتا ہے تو دنیا کا مل جاتا ہے، آخرت کا چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا مل جاتا ہے. یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. ہاں واقعی مجبور ہے، لیکن تقدیر میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو انسان نے اپنے اختیار اور ارادے سے کرنا تھا. اللہ تعالی علام الغیوب ہے. اس کو ازل میں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اللہ نے اسے اپنے علم سے جانا اور اسے لکھ دیا. اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں، اور لکھے ہوئے کا نام لوح محفوظ ہے. سورہ القمر کی آیت نمبر 52-53 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. امام مسلم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس حدیث پاک میں 50,000 سال کے عدد سے وقت کی اتنی مقدار تقدیراً مراد لی جا رہی ہے. حقیقتاً 50,000 سال کا وقت مراد نہیں ہے، کیونکہ وقت تو جو دن کی گردش ہے اس سے یعنی حرکات فلک اور سورج کی رفتار سے بنتا ہے، اور سورج کے طلوع اور غروب سے دن رات بنتے ہیں، اور رات اور دن سے مہینے اور سال بنتے ہیں. جب نہ فلک پیدا ہوا اور نہ ہی سورج پیدا ہوا تو اس سے معنی جو ہے وہ وقت نہیں تھا، بلکہ جو تقدیراً مراد تھی وہ یہاں 50,000 سال کاؤنٹ کیا گیا تھا. اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. جنگ احد میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں سے 9 مسلمانوں کی نیت ان میں سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے
उनकी नीयत गनीमत और दुनिया की मता थी, माल था। लेकिन अक्सर जो रासिखुल अकीदा यानी पुख्ता अकीदा रखने वाले मुसलमान थे, सिर्फ दीन की सरबुलंदी के लिए इस जंग में शरीक हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम हर शख्स को इसकी नीयत के एतबार से हिस्सा देंगे। जो दुनिया चाहता हो इसको दुनिया मिलेगी, जो उकबा चाहता हो उसको उकबा मिलेगी। उकबा से मुराद आखिरत है, यानी जिसके दिल में ये है कि दुनिया का माल तो फानी है और ख़त्म हो जाना है, लेकिन जो आखिरत का माल है वो फानी नहीं है, वो हमेशा रहने वाला है, दायमी है। सो अक्लमंद शख्स वही है जो फानी के पीछे, जो कि सिर्फ कुछ अरसे के लिए है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाना है, उसकी निस्बत वो आखिरत की माल को प्रायोरिटी देगा और उसे उसी की चाहत करेगा, उसी के लिए दुनिया में तगो-दो करेगा। हज़रत उमर बिन खिताब मिंबर पर बयान कर रहे थे, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना कि अमाल का मदार सिर्फ नीयतों पर है और हर शख्स को इसकी नीयत का फल मिलता है। तो जिस शख्स की हिजरत दुनिया पाने के लिए हो या किसी औरत से निकाह के लिए हो, तो इसकी हिजरत इसी शय की तरफ है जिसकी तरफ इसने हिजरत की। यानी अगर दुनिया की गर्ज से, अपने माल को बेचने की गर्ज से, अपनी रिकवरीज इकट्ठी करने की गर्ज से अगर वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर निकलता है या मुल्क से बाहर जाता है, तो वो हिजरत दुनिया पाने के लिए ही है। और अगर वो अल्लाह की राह में घर से बाहर निकला है और नीयत उसने ये की है, तो उसका अजर वैसा ही है। और अगर किसी औरत के लिए वो घर से बाहर निकलता है और अपने वतन को छोड़ता है, दूसरे वतन जाता है, तो उसका भी अजर व सवाब वो औरत ही है और कुछ नहीं। इमाम तिरमिज़ी की रवायत है कि जब मदीने में आए कि शफीउल असबी जब मदीने में आए तो एक शख्स के गिर्द लोग जमा थे। उन्होंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु हैं। मैं इनके करीब जाकर बैठ गया। वो लोगों में हदीस बयान कर रहे थे। जब वो खामोश हुए और तन्हा रह गए तो मैंने कहा, मुझे ऐसी हदीस सुनाइए जिसको आपने खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम से बगौर सुना हो और इसको समझा हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं तुमको ऐसी हदीस सुनाता हूँ जिसको मैंने बगौर सुना और समझा है। फिर हज़रत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर होश में आए, कहने लगे, मैं तुम्हें ज़रूर ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे इस घर में सुनाई थी। इस वक्त मेरे और आपके सिवा इस घर में और कोई नहीं था। फिर हज़रत अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद चेहरा मलते हुए होश में आए, कहा, मैं तुम्हें ज़रूर ऐसी हदीस सुनाऊँगा। तो इस तरह 3-4 मर्तबा आप बेहोश हुए बार-बार, फिर लड़खड़ाते हुए उठे। मैंने इनको सहारा दिया, फिर जब होश में आए तो बयान करने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फैसले करेगा और सब लोग घुटनों के बल होंगे। सबसे पहले इस शख्स को बुलाया जाएगा जिसने कुरान मजीद को याद किया और जिसने अल्लाह की राह में जहाद किया, और वो शख्स जो बहुत मालदार था। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा, क्या मैंने तुझको इस किताब का इल्म नहीं दिया जो मैंने अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी? वो कहेगा, क्यों नहीं ए मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने इस इल्म पर क्या अमल किया? वो कहेगा, मैं दिन रात कुरान मजीद पढ़ता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने झूठ बोला। यानी तेरा मकसद सिर्फ लोगों के दरमियान अपने आप को आलिम जाहिर करना था, अपने आप के दूसरों के साथ बहस करने में कि मैं बड़ा इल्म रखता हूँ, लेकिन उस पर अमल करने के हवाले से तेरा वो जज्बा नहीं था, बल्कि ये जो इल्म हासिल किया था सिर्फ रियाकारी की गरज से था। इसलिए अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुमने झूठ बोला। फरिश्ते भी कहेंगे तुमने झूठ बोला। अल्लाह ताला फरमाएगा, बल्कि तुमने ये इरादा किया था
کہ ये कहा जाए कि फलां शख्स कारी है, यानी उस मोहर को हासिल करने के लिए। ये कुरान का तर्जुमा पढ़ा हुआ है, ये कुरान का हाफिज है, ये कुरान का कारी है। सो उस निस्बत से, और लोग मुझे इसकी निस्बत से मुझे नेक जाने। दिल नेक है कि नहीं है, अमल में नेकी आई है कि नहीं है, इस चीज से गर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावे की नेकी कि ये कहा गया। फिर इस मालदार शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह ताला इससे फरमाएगा क्या मैंने तुझे वुसअत नहीं दी थी, हत्ता कि तुझे किसी का मोहताज नहीं रखा। वो कहेगा क्यों नहीं है मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझको जो कुछ दिया था तुमने इसमें क्या अमल किया। वो कहेगा मैं रिश्तेदारों से नेक सलूक करता था और सदका करता था। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो। फरिश्ते भी इससे कहेंगे तुम झूठ बोलते हो। अल्लाह ताला फरमाएगा बल्कि तुमने ये इरादा किया था कि ये कहा जाए कि फलां शख्स जवाद है, यानी बड़ा ही सखी है। सो ये किया गया। फिर इस शख्स को लाया जाएगा जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा तुमको किस चीज में कत्ल किया गया। वो कहेगा मुझे तेरे रास्ते में जहाद का हुक्म दिया गया था, सो मैंने कताल किया यानी जहाद किया, हत्ता कि मैं कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो। फरिश्ते भी इससे कहेंगे तुम झूठ बोलते हो। अल्लाह ताला फरमाएगा बल्कि तुमने ये इरादा किया था कि ये कहा जाए कि फलां शख्स बहुत बहादुर है। तो ये कहा गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटने पर हाथ मार कर फरमाया, ए अबू हुरैरा, क़यामत के दिन अल्लाह की मखलूक में से ये पहले 3 शख्स होंगे जिनसे जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी। शफी ने ये हदीस हजरत माविया को सुनाई तो हजरत माविया ने कहा इन लोगों को ये सजा दी गई है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। फिर हजरत माविया इतनी देर तक रोते रहे कि हमने गुमान किया कि वो हलाक हो जाएंगे। फिर कुछ देर बाद हजरत माविया की हालत संभली तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 15 और 16 पढ़ी कि जो लोग सिर्फ हयात दुनिया और इसकी जीनत के तालिब हैं, हम इन्हें दुनिया में इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देंगे। और इसमें इनसे कमी नहीं की जाएगी। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं, और दुनिया में उन्होंने जो काम किए वो जाया हो गए, और उन्होंने जो अमल किए वो रायगाह चले जाएंगे। इसी के हवाले से एक वाकया बयान करती हूँ। कहा कोई इलाका था, जजीरा था कोई। उस जजीरे में उनका एक कानून था कि साल के पूरे होने पर नए साल के पहले दिन जो भी उनके समुंदर के किनारे उनके साहिल पे जो पहला शख्स उतरता था कश्ती से उसको बादशाह बना देते थे और उसको कहते थे कि 1 साल के लिए तू बादशाह है, लेकिन 1 साल के बाद हम तुझे अपने ही इस जजीरे के उस इलाके में फेंक देंगे जहाँ जंगल है और मुज़ी जानवर हैं, और फिर तू बस उन्हीं का नवाला बन जाएगा। और जिसको भी बनाया जाता वो खुशी खुशी बादशाह बनने को तैयार हो जाता कि चलो 1 साल के लिए हुकूमत तो मिलेगी। और वो 1 साल खूब ऐश और इशरत करता, हुक्म चलाता और मौज मस्ती करता, और उसको पता भी ना चलता कि 1 साल कैसे गुजरा। और वो साल पूरा हो जाता तो वो उसे उठाकर उस जंगल में फेंक देते जहाँ दरिंदे थे, और वो उन्हीं का नवाला बनता, और यूं उसकी कहानी खत्म हो जाती। और अगले नए साल के नए दिन वो एक और बादशाह चुन लेते जो भी साहिल पे उतरता। इसी तरह इनका ये रवाज चलता आ रहा था कि एक मर्तबा इसी तरह किसी शख्स का चुनाव हुआ
اور وہ بادشاہ بننے کو تیار نہ تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے، جو پہلا شخص آتا ہے اس کو بادشاہ بننا ہی پڑتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ تم بادشاہ بننے کو تیار نہیں ہو، ہم تو اب تمہیں بادشاہ بنائیں گے، یہاں پہ بنا دیا اسے بادشاہ۔ اب اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس پورے سال میں بجائے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، اس نے کچھ فوج تیار کی، اس فوج کو اس علاقے میں بھیجا اور کہا کہ یہاں درندے مارو، ختم کرو۔ وہاں کے درندے اس نے جنگل کے درندے ختم کروائے۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ مزدور بلائے، ان مزدوروں کو حکم دیا کہ وہاں پہ ساری زمین صاف کر کے وہاں پہ ایک محل تیار کرو۔ وہاں پہ انہوں نے محل تیار کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ کسان بلائے، مالی بلائے اور وہاں پہ پودے اور پھول اور پھل اگائے۔ پورے سال میں وہ آرام سے بیٹھ کے اس نے عیش کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس حکومت کے ایک سال میں اس نے وہ جو سال کے بعد اس کے ساتھ ہونا تھا اس کی تیاری کر لی کہ جب سال کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کے اسی جنگل میں پھینکا تو وہ جنگل اب درندے وہاں موجود نہ تھے، وہاں پہ اب وہ کانٹے دار جھاڑیاں نہیں تھیں وہاں پہ، نہ اس کے لیے کچھ مشکل تھی بلکہ محل تھا اس کے رہنے کے لیے، اور اس کے کھانے کے لیے وہاں پھل اور سبزیاں موجود تھیں۔ اس شخص نے یہ سبق دیا کہ یہ زندگی اسی طرح حکمرانی کی طرح ہے، تو لیکن وہ آخرت کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے، آخرت کی تیاری کر لیں، اور جو وہاں کے آگ ہے دوزخ کی اور جو موذی جانور ہیں وہاں، اور جو ہم بولتے ہیں ہمارے بولنے پر ہماری زبانیں جبڑے کاٹے جائیں گے، ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان سب موذی جانوروں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے تاکہ وہ آخرت ہماری سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو پردے پڑے ہیں اور جو ہم دنیا کے دلدل میں پھنس گئے ہیں اور جو مادیت پرستی اور ریاکاری کی لعنت ہم پر آ پڑی ہے کہ ہر چیز میں دکھاوا ہے اور نفس کے چکروں میں پھنس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باہر نکال دیں۔ آیا کریمہ ہے 146، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی تھے، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیے، کتنے ہی نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی یا جہاد کیا یا قتال کیے۔ فما وہنوا، تو وہ سست نہ پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو مصائب یا جو تکلیفیں انہیں پہنچی اللہ کی راہ میں اس کی وجہ سے وہ سست اور کمزور نہ ہوئے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ عاجز ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور کتنے ہی نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیے، کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول،
इल्ला मगर ये आकालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, मगर ये उनके जुमले थे कि ऐ हमारे रब बख्श दे हमारे गुनाह, व इसराफना, और हमारी ज़ियादतियाँ, फ़ी अमरिना, हमारे कामों में जो हमारी ज़ियादतियाँ थी वो हमें बख्श दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को ईमान पर साबित कदम रख, वांसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी काफिरों के खिलाफ मदद फरमा। और इनका कहना कुछ ना था सवाए इस इल्तिजा के कि ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम में हमसे होने वाली ज्यादतियों से दरगुजर फरमा और हमें अपनी राह में साबित कदम रख और हमें काफिरों पर गलबा अता फरमा। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरा, बस उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया का सवाब भी अता किया व हुस्ना सवाबिल आखिरा, और आखिरत का सवाब भी, अच्छा आखिरत का भी अजर अता फरमाया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों और एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बस अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया का इनाम भी अता फरमाया और आखिरत के भी उम्दा अजर से नवाजा, और अल्लाह इन नेकोकारों से प्यार करता है जो सिर्फ इसी को चाहते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नेकोकारों से मुराद नेकी के काम करने वाले और बुराइयों से बचने वाले, जिनको हम मुत्तकी भी कहते हैं। यहाँ पे जो मुसलमान जंगे उहद में घबरा कर भाग गए थे, इनकी तादीब के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया साबकीन, जो पहले नबी गुजर चुके और इनके पैरोकारों के अहवाल बयान फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए अंबिया साबकीन और उनके पैरोकारों में नमूना है। वो जहाद की सख्तियों और मुशक्क़तों पर सब्र करते थे और किसी मरहला पर भी दुश्मन से घबरा कर नहीं भागते थे। सो जंगे उहद में तुम्हारा दुश्मनों के अचानक हमला करने से घबरा जाना और अफरा तफरी में भाग जाना किस तरह मुनासिब हो सकता है। तुम्हें गौर करना चाहिए कि कितने नबियों ने अल्लाह की राह में कताल किया और इनके साथ इनके असहाब ने भी दीन की सरबुलंदी के लिए कताल किया, यानी जंग किया। इनमें से कितने जंग में वो शहीद हुए और कितने जख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ना सुस्त पड़े, ना कमजोरी दिखाई, ना इसके बाद वो जहाद करने से घबराए, ना उन्होंने दुश्मनों से सुलह करने के लिए सोचा, ना वो दुनिया के मालो मता देखकर इसको लूटने के लिए टूट पड़े, ना उन्होंने पीठ फेरी, बल्कि अपने नबी के शहीद होने के बाद भी वो इसी कताल पर, जहाद पर मर्दानगी के साथ और साबित कदमी के साथ दुश्मन के खिलाफ जहाद करते रहे। ये इनके चंद काबिल तहसीन कामों की एक झलक है और इसमें इन मुसलमानों पर एतराज किया गया है कि जो अपने नबी की शहादत की झूठी खबर सुनकर घबरा गए थे और इनमें से बाज तो अबू सुफियान से अमान हासिल करने की तदबीरें सोच रहे थे। अंबिया साबिकीन यानी पहले नबियों और उनके असहाब में ये भी था कि उन्होंने जंग में साबित कदम रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अपने मतलूब का जिक्र करने से पहले, यानी अपने मालिक की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी पहले तलब की। और इसमें दुआ का ये अदब बताया गया कि पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर अल्लाह ताला से कोई मुराद तलब करो। अल्लाह ताला ने इनकी तहसीन फरमाई और इनको नेकोकार करार दिया और इन्हें दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाया। इन आयात से जो मसाइल मालूम हो रहे हैं वो ये हैं कि जन्नत में दाखिल होने के लिए जहाद की सख्तियों और मुशक्क़तों पर सब्र करना चाहिए और दीन की राह में और शरई अहकाम पर अमल करने में जिन मुश्किलात का सामना हो इन पर सब्र करना चाहिए। यानी दो जहाद हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम एक गज़वा से वापस आ रहे थे तो आपने सहाबा इकराम से कहा, हम छोटे गज़वे से बड़े गज़वे की तरफ आ रहे हैं, यानी बड़े जंग की तरफ आ रहे हैं, जहादे कुबरा की तरफ आ रहे हैं। ये जहादे कुबरा वो जहादे सुगरा था जो जाके जंग लड़ी
اور قتل کیے اور قتل ہوئے، لیکن دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابند رہنا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا اور اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہ سب معاملات آسان نہیں ہیں، بلکہ اس کو جہاد کبریٰ کہا گیا ہے کہ بڑا جہاد ہے یہ، دنیا کی زندگی میں رہ کے ان مصائب کا سامنا بھی کرنا اور اس پر پھر صبر کرنا اور ثابت قدمی سے اللہ کے حکم پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا ہے پوائنٹ جی اس کا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کے آرزو کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ جہاد کی تمنا میں یہ نیت نہ کرے کہ مجھے کوئی کافر مار دے اور میں مر جاؤں، میں شہید کہلاؤں، بلکہ یہ نیت کرے کہ میں دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا رہوں، خواہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ چوتھا پوائنٹ اس کا ہے کہ رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو اسی جذبے سے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، نہ کہ آدمی اللہ کے دشمنوں سے مفاہمت کی تدبیر